وہ ہسپتال سے گھر پہنچا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا کہ اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ ارے یار، ہم تو اس دنیا میں کوارے ہی رہ جائیں گے۔ پتہ ہے، میں نے بی جان سے کہا تھا کہ ہماری منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں، پلیز میری شادی کر دیجیے، مگر انہوں نے فوراً کہا کہ جب تک ہمدان کی شادی نہیں ہوگی تب تک کوئی شادی کا نام نہیں لے گا۔ مجھے لگتا ہے اب تو اس دنیا میں شادی کوئی نہیں کرے گا اور ہماری بھی نہیں ہوگی۔ اندر سے زید کی روحان سی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، خاندان میں ان کی عمر کی تو کوئی لڑکی ہے نہیں، اور جو تھی اس نے صاف سے منع کر دیا شادی سے، اور کسی اور کے ساتھ وہ چلی گئی تو بس اب دل پر لے کے بیٹھے ہیں اور ہمیں تو بھی ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ میرے بھائی ہیں، لیکن یار ہمارے بھی تو کوئی ارمان ہے نا۔ کتنے سال ہو گئے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن نہیں آیا، اور اوپر سے کہیں اور شادی پہ ہمیں لے کے نہیں جاتے۔ پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا میں نے کوئی ساڑی لہنگا نہیں پہنا، اس کی بہن عمیرہ بولی تو گہرا سانس بھرتا اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی اس نے سلام کیا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اشارہ سے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی بات سن تو نہیں لی۔ وہ بے نیاز سا بنتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کپڑے چینج کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ ملازمہ اس کے لیے کافی لے آئی۔ وہ کافی کا مگ تھامے ٹیرس پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ذہن ان لوگوں کی باتوں کی طرف تھا۔ پاشا ہاؤس کے مالک عبدالکلام پاشا کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا خاور پاشا، منجلہ عارف پاشا اور سب سے چھوٹا جواد پاشا، جو کہ 16 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ 4 سال پہلے خاور اور عارف اپنی بیویوں سمیت دنیا سے جا چکے تھے۔ عارف پاشا کے 2 بیٹے ہمدان، ارمان اور بیٹیاں پلوشہ اور عمیرہ تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے عارف پاشا کی ایک ہی بیٹی کرن اور 2 بیٹے زید اور زہیب تھے۔ کرن کی شادی ہمدان سے طے ہوئی تھی، مگر کرن کو اپنے کلاس فیلو پسند آ گیا تھا اور ہمدان نے اس کے بعد شادی کا نام لینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ عبدالکلام پاشا کی بیٹی فرحانہ پاشا کی ایک بیٹی کنزا اور ایک بیٹا ربید تھا۔ پلوشہ کی زید سے، کنزا کی شادی ارمان سے، جبکہ عمیرہ کی ربید سے طے تھی۔ زہیب کی شادی فرحانہ کی نند کی بیٹی ربیہ سے طے ہوئی تھی۔ یہ بچوں کے رشتے جب طے ہوئے تھے، چند مہینوں بعد ہی خاور پاشا عارف پاشا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک فلائٹ کریش میں دنیا سے چلے گئے، اور ہمدان اس کے بعد تو بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ ان 4 سالوں میں وہ ابھی تک سنبھل نہ پایا تھا۔ اس نے سارا کاروبار سنبھالا اور ساتھ اپنا ہسپتال بھی، جو کہ بہترین ہسپتال میں سے ایک تھا۔ وہ بظاہر پتھر دل اور خڑوس لگتا تھا، مگر اتنا ہی وہ اندر سے حساس تھا۔ وہ کمرے میں آ کر سوچ میں ڈوب گیا، مگر اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بی جان کو کس طرح منائے۔ اگلے دن وہ ہسپتال کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوست عاظم سے اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ ایک کام کر، کانٹریکٹ میرج کر لے، اگر اپنے بھائی کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دینا۔ عاظم کی بات پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں کبھی نبھا نہیں پاؤں گا، اس لیے چھوڑنا تو اسے پڑے گا، بس چند مہینوں تک کی شادی ہو۔ لیکن اتنے ماہ کے لیے شادی کون کرے گی اور کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولا، ہونے کو بہت کچھ ہو جاتا ہے اور پیسے کے لیے انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آس پاس کوئی مجھے ملے جو کہ تم سے شادی کر سکے اور تمہیں اس کی عوض کچھ رقم دے دینا۔ عاظم نے کہا، دیکھ لو، یہ نہ ہو کے بعد میں مجھے دھوکہ مل جائے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، اچھا چل دیکھتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے۔ ویسے تمہاری اتنی زیادہ امپلائیز ہیں جو کہ تمہارے لیے ایک جھلک کے لیے تڑپتی ہیں، کسی ایک کو منا لو نا اس بات کے لیے۔ وہ بولا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گی؟ وہ سب لوگ مجھے ایک جھلک دیکھنے کو پتہ ہے کیوں تڑپتی ہیں، میری دولت کی وجہ سے۔ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا، جانتا ہوں یار، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو منا لو، اگر مانتی ہے تو۔ عاظم نے آنکھ دبا کر کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ عاظم کے جانے کے بعد وہ کافی پی رہا تھا کہ جب ہی کیفیٹیریا میں کام کرنے والا لڑکا اس کے پاس آیا۔ سر، ابھی میں نے آپ کی اور عاظم سر کی گفتگو سنی، میں اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ رازدانہ انداز میں بولا تو چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بیٹھو تنویر اور بتاؤ کیسے؟ اسے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر جی، میری منگیتر ہے وہ، اور میں اسے اپنا گھر لینا ہے، اور مجھے پتا ہے وہ اپنا گھر لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ تنویر چمکتی آنکھوں سے بولا تو اس کے اندر ناگواری کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، اس لیے آپ پر اعتبار کرتے ہوئے چند مہینوں کے لیے اس کی شادی کروں گا، اور میں امید کروں گا کہ آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، اس لیے بس یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھی زندگی جیے۔ میں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا، مجھے اسی لیے اس طرح دھکے کھا کھا کر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔
मैं चाहता हूँ मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं अपना कैफ़े ख़रीद कर वहाँ काम करूँ ताकि मैं उसे अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। कोई ऐसे तो नहीं देगा ना साहिब जी? तनवीर बोला तो उसके तने हुए असाब ढीले हो गए। वो अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा था तो उसे कुछ गलत ना लगा। वो गहरा सांस भर के रह गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन यह निकाह कुछ शराइत के साथ होगा जिस पर उसने सिग्नेचर करने होंगे ताकि बाद में तुम लोग किसी किस्म का मुझे ब्लैकमेल न कर सको। वो बोला, आपकी जो भी शर्तें होंगी हमें मंजूर है, आप मुझे बताएं आपकी कहाँ मुलाकात करवानी है। तनवीर बोला। उसने उसे अपने फ्लैट का पता बताया और सैटरडे का टाइम देकर उठकर कैफेटेरिया से बाहर निकल गया और पीछे तनवीर उठकर डांस करने लगा। वो एक काम कर अपना, ये क्या कर रहा है? कैफ़े के मालिक ने कहा। अब एक काम गया बाढ़ में, मैं तो अयाशी करूँगा अब, आज से छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा। तनवीर बोला और ट्रे पटकता बाहर निकल गया। वो घर पहुंचा तो अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। वो भागता हुआ अंदर आया तो सरैया उसकी माँ 17 साला बिया को बेदर्दी से मार रही थी, जबकि उसकी भाभी जुबैदा और दोनों बहनें फरहाना रेहाना दिलचस्पी से सब देख रही थी। क्या कर रही है तू अम्मा? छोड़ इसको, कितनी बार समझाया इस पर हाथ मत उठाया कर। वो चीख उठा और जल्दी से उसे थाम कर खड़ा किया, जिसका बदन होले होले लर्ज रहा था। तू क्यों लेता है इसकी साइड इतनी? जानते भी हो उसने क्या किया है? आज फिर से फरहाना का रिश्ता जो देखने आए थे ना, इस मनहूस को पसंद कर गए। मैंने इसे मना भी किया था कि उनके सामने मत आना, मगर ये दरवाज़ा खोलने चली गई और उन्होंने आते ही कहा, वो जो प्यारी सी लड़की है हमें तो वही पसंद। पहले ही मेरे घर में जहेज देने के लिए इतने पैसे नहीं, और ऊपर से ये गुलमोही मेरी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। सरैया चीख कर बोली, मेरी मक्खन जा तू कमरे में जा। वो इसे पुचकारते हुए बोला तो वो उठकर अंदर चली गई। अरे अम्मा, तुझे समझ क्यों नहीं आती? इसके बेदाग हुस्न पर अगर कोई दाग लग गया ना तो मेरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। और जो तुम लोगों को मैंने सपने दिखा रखे हैं ना, वो बहुत बड़ा घर लेकर दूंगा, वो धरे का धरा रह जाएगा। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने उसकी इतनी हिफाजत करवाना चाहता हूँ। उसके और अपनी भाभी के जाते ही वो शातिराना अंदाज में बोला तो इन तीनों माँ बेटियों की आंखों में हैरत दर आई। क्या मतलब? कहना क्या चाहता है तू? सरैया ने चौंक कर पूछा। अम्मा, मेरे ऑफिस के बॉस है ना, उन्हें लड़की चाहिए कुछ दिनों के निकाह करने के लिए, इससे और अपने साथ रखेंगे, छुएंगे भी नहीं। वैसे तो पैसे मिलेंगे ही, उसके अलावा बस एक बार पैसे आ गए ना फिर मैं इसे कई जगहों पर बेचूंगा, एक एक रात के लिए। पता है बड़े पैसे मिलते हैं, मुझे कबीर बता रहा था। उसने पास होकर कहा तो वो तीनों की आंखें जगमग करने लगी। तुम्हारा बॉस शादी करना चाहता है? क्या उसने उसको देखा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी किस्म की उनको लड़की चलेगी। दरअसल उनकी दादी है ना, उनकी शादी करना चाहती हैं, मगर वो शादी करना नहीं चाहते। इसी वजह से दादी ने शर्त रखी है कि घर में किसी की शादी नहीं होगी जब तक वो शादी नहीं करेंगे। तो बस अपने बहन भाइयों की शादी रचाने के लिए टांग करना चाहते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। अम्मा, पता है कितने अमीर हैं वो, और मैं जितने भी पैसे मांगूंगा ना वो देंगे। और देखना फिर मैं अपनी बहनों की शादियाँ कितनी अच्छी जगहों पर करता हूँ। वो बोलता ही चला जा रहा था और तीनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुछ देर के बाद वो उठकर अबिया के कमरे में आया तो सर झुकाए रो रही थी। मेरी मक्खन, मेरी मलाई क्यों रो रही है? बस कर दे, बस कुछ अरसा और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा, फिर सब कुछ आसानियाँ ही आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर खरीदूंगा जहाँ पर तुम और मैं रहेंगे। वो इसके पास बैठते हुए बोला। सच्ची मुच्ची? वो अपनी हसीन आंखों को साफ करते हुए बोली, बिल्कुल मेरी मक्खन मलाई, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। वो बोला, मैं हर तरह का साथ दूंगी, बोलो मुझे क्या करना होगा? वो जल्दी से बोली, तुम्हें मेरे बॉस से कुछ अरसे के लिए शादी करनी होगी और तुम्हें उसके बहुत पैसे देंगे जिनसे हम अपना घर बना लेंगे और अपना कारोबार करूँगा। और उसके बाद जब तलाक देंगे ना फिर मैं अपनी मक्खन मलाई से शादी कर लूँगा। वो इसको थोड़ी से थामे हुए बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे? वो नम लहजे में बोली, तुम्हें लोगों की परवाह है? हम लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? क्या मैं इस तरह चंद हज़ार की नौकरी करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा अपना कैफेटेरिया हो, अपना होटल हो, जहां छोटा मोटा, ताकि मैं कुछ ज़िंदगी की हर खुशी तुझे दे सकूं। प्लीज़ मेरी खातिर मान जाना। उसके हाथ थामते हुए उसके गिर्द अपनी बातों का जाल बुनता जा रहा था। हरगिज़ नहीं,
मैं आपके अलावा किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपने मुझसे मोहब्बत की है तो आप किस तरह मुझे किसी और का होने दे सकते हैं? मैं आपका साथ चाहती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे लिए कीमती दौलत है और मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, वो गुलूगेर लहजे में बोली। उसके बाद के जवाब में तनवीर दिल ही दिल में बेचुताब खा कर आ गया, मगर वो जब्त करते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ठोड़ी से थामे देखने लगा। मेरी मक्खन, मेरी मलाई, मैं नहीं चाहता कि तुझे मज़ीद कोई तकलीफ़ हो। मैं बस तुम्हारे लिए ये सोच कर रहा हूँ, इतना सा साथ दे दे मेरा मक्खन। मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। इस घर में रहेंगे तो ये तुम्हारे साथ वैसा ही नौकरानियों वाला सलूक करते रहेंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी खातिर मान जाओ। क्या तुम नहीं चाहती मैं और तुम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं? क्या लोग हमें हसरत से देखें? वो इसका हाथ थामे हुए बोला तो वो लब कुचलते हुए नम आंखों से उसे देखने लगी। दिल तो मान नहीं रहा था, मगर वो शख्स इस घर का वाहिद शख्स था जो इसकी हमेशा केयर करता था और उसके लिए वो सबसे लड़ पड़ता था। इसलिए वो इसको पसंद करती थी और दिल से उसका साथ चाहती थी। मगर इस सब के पीछे उसका क्या गंदा मकसद था उसे अभी तक मालूम नहीं था। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस लाऊंगा, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। इतवार के दिन हम फिर सर से मिलने जाएंगे। उसका रुखसार थपथपा कर बोलता उठकर चला गया। वो बहुत बेचैन सी थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वो बात नहीं मानेगी तो कहीं उसका ये वाहिद सहारा उससे छूट ना जाए। फिर इतवार के दिन उसे पार्लर ले गया। वहाँ पर जाकर उसने इसका फेशियल वैक्स करवाई। उधर से उसने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद आईने में जायज़ा लिया तो वो बहुत हसीन लग रही थी। अल्लाह ने वैसे भी उसे बड़ा हुस्न दिया था, मगर आज तो कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी। हल्के पिंक कलर की शिफॉन की अनारकली फ्रॉक में वो बहुत जच रही थी। चले तनवीर, वो दुपट्टा सर पर जमाए हुए बोली, जो कि यक तक उसे देख रहा था। हाँ चलो मेरी मक्खन। उसकी बलाएं लेते हुए बोला तो वो शर्मा गई। फिर उसे लेकर एक आलीशान इमारत के सामने आया। फिर वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए और एक फ्लैट के सामने खड़े हो गए। बैल दी तो कुछ देर के बाद एक शख्स बाहर आया जो कि मुलाजिम लग रहा था। जी, मैं हमदान साहब से मिलने आया हूँ। तनवीर ने कहा। जी जी आइए, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। वो मुलाजिम जल्दी से बोला तो इसे लेकर अंदर आ गया। फ्लैट काफ़ी बड़ा था और इसका लाउंज बहुत ज़बरदस्त था। अभी यहाँ ने दिल ही दिल में से रहा और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर गुजरी, एक हैंडसम सा आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसे देखकर एक पल के लिए वो ठटक गया और फिर इग्नोर करते हुए सोफे पर बैठ गया। अभी हाँ, ये मेरे सर जी हैं और सर जी ये वो लड़की है जो मेरी मंगेतर, जो कि चंद माह आपकी बीवी रहेगी। तनवीर जल्दी से बोला ठीक है, लेकिन एक बात अच्छे से बता देना कि मेरे घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी और इस शादी को रियल की तरह सबके सामने पेश करना है और इस काम के बाद हक महर की रकम के अलावा 1 करोड़ रुपया दूंगा। उस वाट लहजे में बोला तो तनवीर की जैसे बांछें ही खुल गई। जी जी सर, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरी मक्खन बड़े अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करती है और बड़ी प्यार करने वाली है। वो बिया का हाथ थाम कर बोला तो हमदान ने नागवारी से सर झटका। फिर वो अपना प्लान समझाने लगा। पता नहीं इसे ये दोनों बहुत अजीब लगे थे, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। निकाह भी और इसी वक्त होगा। वो बोला तो अबिहा मुतहश अंदाज में तनवीर की तरफ देखा, मगर तनवीर ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे चुप रहने का कहा। फिर कुछ भी देर में उसका निकाह अबिहा से हो चुका था। तुम फिलहाल इसे लेकर जाओ और कल तुम इसे मेरे घर के सामने छोड़ जाना और जो वो वहाँ करना है वो अच्छे से समझा देना। अब तुम लोग जा सकते हो, वो सर्द लहजे में बोला और उनके जाते ही सोफे की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। न जाने अंदर अजीब सा गिल्ट क्यों महसूस हो रहा था, मगर वो भी क्या करता, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था और वो शादी जैसी जिम्मेदारी निभाना भी नहीं चाहता था। अगले दिन दोपहर में तनवीर इसे लेकर आलिशान महलनुमा घर के सामने खड़ा था। वो सहमी सी उसके अंदर जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देखकर सब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक शोरगुल बरपा था। कौन है आप लोग बेटा, और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बीजान ने बैठते हुए पूछा। जी, मेरा नाम तनवीर है और मैं इनका कज़न हूँ और ये आपके बेटे डॉक्टर हमदान की बीवी हैं। उसकी बातें पर डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया और सब यंग पार्टी वहाँ जमा हो गई। ये देखिए तस्वीर। तनवीर ने उनके निकाह की तस्वीर आगे करते हुए कहा तो बीजान हैरानी से तस्वीर देखने लगी। अरमान ने मोबाइल पकड़ा और संजीदगी से देखने लगा। आपका क्या लगता है, आप यहाँ आकर ये बात हमें कहेंगे और हम मान लेंगे?
और ये फेक तस्वीर बनाकर कोई भी अपनी माँ बहन को लेकर यहाँ आकर कहेगा कि वो डॉक्टर हमदान पाशा की बीवी है, तो ये बात सच समझेंगे। हमको काट के उल्लू समझा है। हमें पता है हमारा भाई कैसा है, वो तो लड़कियों को नज़र उठा कर भी नहीं देखता, और ऐसे शादी करके आ जाएगा। अरमान ने तंग कर कहा, हम क्यों झूठ बोलेंगे, कल ही तो उन्होंने निकाह किया है और छोड़ कर चले गए, इसलिए मैं आज इन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ, और ये आपकी अमानत है, आपके सुपुर्द करके मैं तो जा रहा हूँ। तनवीर उठते हुए बोला तो सब सटपटा कर रह गए। अरे ऐसे कैसे इसे छोड़कर चले जाओगे? हम लोग कैसे किसी पढ़ाई लड़की को अपने घर में रखेंगे? जब तक हमारा बच्चा कंफर्म नहीं करेगा हम बात नहीं मान सकते। बीजान ने कहा, तो ठीक है, आप अपने बेटे को फ़ोन करके पूछ लीजिए। तनवीर प्लान के मुताबिक टांग कर रहा था। ठीक है, बुलवा लेते हैं हम अपने बिग बी को घर। प्लीज़ ज़रा फ़ोन तो करो ज़ुहैब। अरमान ने कहा तो ज़ुहैब ने जल्दी से कॉल मिलाई और इसे सारी तफसील बताई। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग मुझे फ़ोन कर रहे हो? जब वो कह रही है कि वो मेरी बीवी है तो ठीक ही कह रही होगी ना। वो मेरी बीवी है, उसे मेरे कमरे में भेज देना और उसके कज़न को कह दो कि वो वापस चला जाए। दूसरी तरफ हमदान ने कहा तो ज़ुहैब की आंखें हैरत से फट गई और सब लोग उसे तजस्सुस से देख रहे थे। क्या हुआ? क्या कहा बिग बी ने? जैद ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी है, उसे मेरे कमरे में भेज दो और उसकी कज़न से बोलो कि वो वापस चला जाए। ज़ुहैब खोए खोए अंदाज में बोला तो अब की बार सबकी आंखें हैरत से फैल गई थी और जैद उठकर लुटियाँ डालने लगा। अरे बाहुले हो गए वो लड़के, बीजान ने चिल्ला कर कहा तो ज़ुहैब और अरमान ने उसे पकड़ के बिठाया। सॉरी बीजान, वो हमारे बिग बी ने शादी कर ली ना, मतलब हमारी एक आदत भाभी भी आ गई ना, तो इसी खुशी में डांस निकल गया। जैद सटपटाकर बोला तो सब लोग मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी जब्त करने लगे, क्योंकि उनमें से सब जानते थे कि शादी के लिए सबसे ज़्यादा अताउला वही हो रहा है और हमदान की शादी होने का मतलब था कि अब इन लोगों की शादी भी जल्दी होगी। उमेरा और पलवाशा ने बीजान के कहने पर इसे इसके कमरे में छोड़ा और बाहर निकल गई, क्योंकि बीजान का हुक्म था कि उससे कोई भी बात ना की जाए जब तक कि वो डॉक्टर हमदान से बात नहीं कर लेती उसके मुतालिक। उन दोनों का तो आपस में बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि उस प्यारी सी लड़की से बहुत सी बातें करें, मगर वो दिल मसूक कर रह गई और बाहर आ गई। फिर खाना खाने के बाद ज़ुहैब और जैद अपने दफ्तर के लिए निकल गए और शाम को वो लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। वैसे घर का माहौल बहुत अजीब सा हुआ है। बीजान तो किसी से बात नहीं कर रही, उनका तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पलवाशा ने कहा, ज़ाहिरी बात है उनके लाडले पोते ने ऐसा चांद चढ़ाया है कि इन्हें गुस्सा तो आना ही था। इन्हें कितना अरमान था ना कि बिग बी की शादी हो, मगर उन्होंने इनके सारे अरमान खाक में मिला दिए। अरमान संजीदगी से बोला, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही नोट कर रहा हूँ कि आज अरमान की बहुत रट लगा रहे हैं। अपने नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप बार बार? जैद ने आंखें पटपटा कर कहा, तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि भांगड़ा क्यों डाल रहा था? अरमान ने उसकी गर्दन से जकड़ते हुए कहा, वो मेरे अंदर खुशी का एहसास निकल रहा था। मैं ये सोच सोच कर बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं कबारा नहीं मरूंगा, मेरी भी शादी होगी। अरमान भाई, मेरे भी बच्चे होंगे। ओह माय गॉड। जैद पलवाशा को देखकर चहक कर बोला तो पलवाशा ने ज़ोर से कुशन उसकी तरफ फेंका। अरे एक तो मुझे जलाद किस्म के साले मिल रहे हैं, ऊपर से बीवी भी जलाद। वो कुशन कैच करते हुए बोला, मरो जाकर तुम। पलवाशा गुस्से से बोली, शादी से पहले बेवा होने का इरादा है क्या? उसे छेड़ते हुए बोला तो बाकी सब भी उसे कुशन मारने लगे और सब एक दूसरे पर मारते हुए हंस रहे थे। सीढ़ियों पर खड़ी अबीहा हैरानी से ये सब देख रही थी। ऐसी मोहब्बत उसने कहाँ देखी थी। वो बाजू पर कोट डाले अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में एक तूफान बदतमीजी बरपा था और सब एक दूसरे को कुशन से मारते हुए हंस रहे थे। और एक कुशन उड़ता हुआ उसकी तरफ आया और उससे पहले कि उसके चेहरे पर लगता, हवा में उसने कैच कर लिया। क्या बेहूदगी है ये? वो चिल्लाकर बोला तो हॉल में एकदम से सन्नाटा छा गया। वो वापस पलटी, अबीहा एकदम से मुड़कर देखने लगी तो हमदान पाशा पथरीले तासरात लिए खड़ा था और बाकी सब सर झुकाए यूं खामोश थे, गोया किसी कटहरे में खड़े हों। जीन कहीं का, कैसे सबकी हंसी छीन ली। वो बड़बड़ाते हुए रेकिंग से टेक लगा गई। ये सब 5 मिनट में साफ होना चाहिए और एक भी चीज़ इधर उधर नजर ना आए, वो सर्द लहजे में बोला और फिर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया कि बीजान ने पीछे से पुकारा। वो गहरा सांस भरता उनकी तरफ मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वो पास आकर उनके माथे को चूमते हुए बोला, बैठो, मुझे बात करनी है।
उन्होंने सोफे की तरफ हाथ इशारा करते हुए कहा। तो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। बाकी सब लोग एक साइड पर बैठे तजस्सुस से उनकी जानिब देख रहे थे, मगर वो मुतमईन था क्योंकि कल रात वो तय कर चुका था कि उसे क्या कहना है। ये सब क्या है? ये शादी होती है? ऐसे कौन शादी करता है? बीजान ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। ये वही है जो आपको नजर आ रहा है और समझ आ रहा है। और दूसरी बात कि शादी कौन करता है, ऐसे मैं करता हूँ। आपको पता है ना, मेरे दिल में जो आता है मैं वही करता हूँ। मेरे दिल ने कहा कि मैं शादी कर लूँ तो कर ली। लड़की अच्छी लगी, बातचीत चली और सब कुछ फिक्स। इत्मीनान भरे लहजे में बोला और सब एक दूसरे को मायने खेज नज़र से देखने लगे। ये भला क्या बात हुई? दिल ने कहा और तुमने सुन लिया। अगर लड़की पसंद आई थी तो शादी करनी थी, तो हम में से किसी को आकर बोल देते। हम आपस में बातचीत करके उसके घर रिश्ता लेकर जाते। मगर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी मनमानी ही करनी होती है। और पता नहीं कैसे वालिदैन हो उनके, जिन्होंने ऐसी ही लड़की को तुम्हारे साथ भेज दिया। बीजान नाक भरी बड़े लहजे में बोली। उसके माँ बाप नहीं हैं, अपने मामू के घर रहती थी और वो लोग इतनी इस्तात नहीं रखते थे कि धूमधाम से शादी कर सके। इस तरह मेहमानों को बुलाकर खर्च भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए मैंने इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए इस तरह शादी की। वो गहरा सांस भरकर बोला तो बीजान चौंक गई। यतीम है बच्ची। बीजान का दिल नरम पड़ गया। जी, वो मुख्तसर जवाब देते हुए उठ खड़ा हुआ। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरी, चुपचाप बैठ जाओ। बीजान ने कहा तो झुंझला कर बैठ गया और निगाहें बेख्तियार सीढ़ियों की जानिब उठी, जहाँ से एक साया गायब हुआ था। ओह, तो बिग बी को अपनी जोजा के पास जाना है। जैद की ज़ुबान में खुजली हुई, मगर हमदान की एक गिर की वजह से वह सटपटाकर इधर उधर देखने लगा। अब आपको क्या कहना है? वो बोला। ऐसी शादी को हम नहीं मानते। मैं मानती हूँ कि उसके घर वाले जिनके यहाँ वो रहती थी उसको इस तरह रुखसत करना चाहते थे, लेकिन इस घर में रहते हुए शादी मुमकिन है, तो इसलिए मैं तुम्हारी शादी दोबारा से करूँगी। बीजान ने कहा। तो वो गड़बड़ा सा क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो हड़बड़ा कर बोला तो सब यंग पार्टी खनखाड़ने लगी। ठीक है, वो तुम्हारे कमरे में ही लेगी, लेकिन हर फंक्शन ज़रूर होगा। जहाँ पर बाकी सब होंगे वहाँ तुम्हारा भी होगा। अगर तुमने इनकार किया तो बाकी किसी की शादी नहीं करूँगी। बीजान ने कहा तो सब लोग हड़बड़ा कर उसे देखने लगे और जैद ने हाथ जोड़े तो वो बहम सा मुस्कुरा दिया। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इत्मीनान से बोला तो सबके चेहरे खिल उठे। जाओ कमरे में और जाकर हमारी बहू को भेजो, हम उसे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। जब से हमने उनसे बात ही नहीं की है। बीजान ने कहा तो सर इस बात में हिलाते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर वो तेज़ी से अपने कमरे की जाने पड़ गया। वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल नहीं हो रहा था कि बाहर को आती अबीहा से ज़ोर से टकराया और उसे लेता हुआ ज़मीन पर गिरा। वो ज़ोर से आंखें मीच कर लेटी थी और यकटक वो इसके सभी चेहरे को देख रहा था, जिस पर इंतहा की मासूमियत थी। पीछे से यंग पार्टी एक साथ खनकारी तो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। क्या बेहूदगी है ये? इस तरह तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और गुस्से से बोलता उन सब पर के सामने आकर खड़ा हो गया तो सब हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। वो हम लोग तो अरमान भाई के कमरे में जा रहे थे मूवी देखने के लिए, हम आपके पीछे थोड़ी ना आ रहे थे। ज़ुहैब ने सटपटाकर कहा तो बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। भाभी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, हम लोग मूवी देखते हैं। उमैरा ने कहा तो उसने बेख्तियार हमदान की तरफ देखा। कोई ज़रूरत नहीं, इसे मेरे साथ वक्त स्पेंड करना है और फ़िलहाल वो बीजान से मिलने जा रही है। जाओ तुम बीजान से मिलकर आओ, मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूँ। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बालों की लट को कान के पीछे हटते बोला तो सबकी आंखें हैरत से फट गई। ओए होए, लगता कोई सुधर रहा है, जैद बोला, मगर उसके घूरने पर वो चटपटाकर अरमान के कमरे की जानिब भाग गया। वो सर झटक कर वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो आधे पौने घंटे के बाद जब फ्रेश होकर निकला तो वापस कमरे में आ चुकी थी। वो उसके हाथ में ख़ानदानी कंगन देखकर वो लब्भींच कर रह गया। वो समझ चुका था कि बीजान ने अपने ख़ानदानी कंगन से बड़ी बहू होने के नाते दे दिए हैं। हमारे दरमियान जो डील हुई है वही तुम्हें मिलेगा। उनको लेकर जाने के बारे में सोचना भी मत। ये मेरी माँ को पहनाए गए थे और ये सिर्फ और सिर्फ इस घर की हकीकी बहू को ही मिल सकते हैं। वो इसकी कलाई को जगड़ते हुए बोला तो नम आंखों से उसे देखने लगी। जी अच्छा, वो आहिस्ता से बोली। बड़ी हैरत हुई, मुझे कितनी मासूम दिखती हो, मगर चंद पैसों के लिए क्या कुछ करने को तैयार हो गई हो। किसी की बीवी बनने के लिए भी तैयार हो गई।
वो ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े होते हुए तंजिया लहजे में बोला, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो लब कुचलते हुए बोली, ब्लडी गॉड डिगर। वो तड़क लहजे में बोला तो ना समझी से उसे देखने लगी। जी, वो क्या होता है? वो हैरानी से बोली तो मुड़कर उसे देखने लगा। कितना पढ़ी हुई हो तुम? उसने इसे सरता पैर देखते हुए बोला, 8वीं तक। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली तो तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। तुम जैसी हसीन लड़की को पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है? पढ़ते लिखते और हुनर वो सीखते हैं जिन्होंने कुछ मेहनत से करना हो, मगर तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों को उसकी क्या ज़रूरत है? तुम जैसी लड़कियां तो चंद मिनट किसी को देखकर लाखों कमा सकती हैं। वो तंजिया लहजे में बोला तो लब कुचलते हुए सर झुका गई। आप शायद मुझे कुछ गलत बोल रहे हैं और आपको मुझे गलत बोलने का कोई हक नहीं है। वो लब भींच कर बोली तो वो उठकर उसके पास आने लगा। वो गड़बड़ाकर पीछे होने लगी और उसका पाँव मुड़ा और उससे पहले कि वो गिरती उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर गया। वो थूक निकलते हुए खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। आइंदा से मेरे सामने इस तरह जुबान दराजी मत करना, वरना काट के रख दूंगा तुम्हारी जुबान। वो बोला तो उसकी आंखों में नमी सी झलकने लगी। वो लब खींच कर उसे छोड़ता रुख फेर गया। वो चुपचाप सोफे की जानिब पड़ गई। थोड़ी देर के बाद मुलाजमा अंदर आते हुए उसे खाने के लिए कहने आई तो वो डाइनिंग हॉल में चले गए, जहाँ पर सब आपस में किसी बात पर हंस रहे थे, मगर उन्हें देखते ही सब चुप हो गए। हल्की फुल्की गुफ्तगू में खाना खाया गया और चाय का कहता हुआ कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद सबके साथ वो बैठी रही और कमरे में आई तो वो सोफे पर बैठा था। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में नरम बेड पर नींद मेहरबान हो चुकी थी। वो काम करके फारिग हुआ तो उसे बेड पर सोता देख उसके माथे पर बल पड़ गए। वो पास गया और आहिस्ता से पुकारा तो टस से मस भी ना हुई। ओ मैडम, उसके बाजू से खींचकर बिठाते हुए बोला तो घबराई हुई उसे देख रही थी। उसकी ग्रे आंखों में नींद का खुमार उसे एक पल के लिए मस्मराइज कर गया। उठो मेरे बेड से। वो इसकी हसीन आंखों से निगाहें चुरा कर बोला, मगर मैं कहाँ सोऊं? वो लब कुचलते हुए बोली, वहाँ सोफे पर। वो कहते हुए बिस्तर झाड़ते हुए कंफर्टर सूंघने लगा। मेरा बिस्तर गंदा कर दिया गोल्ड डिगर लड़की ने, ये तुम ही ले लो। वो कंफर्टर उस पर पहनते तनफ्फुर भरे लहजे में बोला तो उसकी बात पर दुखी होठ पर बेड से उठकर सोफे पर चली गई। फिर अगले दिन भी सुबह सुबह उठते जलील करने लगा था। वो बात बात पर इसे गोल्ड डिगर बोलता था। फिर उसके हॉस्पिटल जाते ही वो उठकर बाहर आई तो वो पलवशा और उमैर कोई सीरीज़ देख रहे थे जो कि इंग्लिश में थी, मगर उसमें एक वर्ड आया गोल्ड डिगर तो वो गौर करने लगी। उसने महसूस किया कि स्टोरी कुछ यूँ थी कि वो लड़की मर्द के साथ पैसे के लिए ताल्लुक़ रखती है और अपनी पार्टनर को छोड़कर किसी और का हाथ थाम लेती है जिसका पास ज़्यादा पैसा होता है। वो जैसे शर्म से पानी पानी हो गई। कुछ देर के बाद वो उठकर अंदर आई और घुटनों में सर दिए रोने लगी। जी हल्का हुआ तो वो सोफे पर ही सो गई। वो वापस आया और अपना काम निपटा कर कमरे से निकल गया। घर में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। हर एक बहुत खुश नजर आ रहा था और धड़ाधड़ शॉपिंग चल रही थी। उसे भी शॉपिंग के लिए कहा गया, मगर उसने सहूलत से मना कर दिया तो बीजान ने उसके साइज़ की ड्रेसेस लाने का जिम्मा पलवाशा को दे दिया। आज शादी का पहला फंक्शन था। उमैरा की फरमाइश पर वो बारबी नाइट रखी गई थी जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होती थी, मगर यहाँ दूल्हे हजरात भी शामिल होने वाले थे और पार्टी फार्म हाउस पर रखी गई थी। हमदान सुबह से ही उधर गया हुआ था। शाम के फंक्शन में सब दुल्हन अपनी फेवरेट फेरी टेल्स वाली ड्रेसेस में थी और हमदान समेत सब लोगों की निगाहों का अंदर ख़त्म हो गया था। अब यह जैसे ठहर सी गई थी। वो अपना सर टिरकर इधर उधर देखने लगी। फिर वहाँ मौजूद इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो गुमसुम सी एक साइड पर खड़ी थी और हमदान के दोस्त दो जो कि वकील थे उसे बड़ी बेबाक नज़रों से देख रहे थे और वो उनकी निगाहों से डिस्टर्ब सी एक साइड पर होकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उमैरा उसका बाजू खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई जहाँ वो लोग कपल डांस कर रहे थे और अरमान हमदान को ले आया था और उसकी कमर में हाथ डाले वो करीब कर गया। फिर वो जूस का ग्लास थाम ही रही थी कि उसकी मैक्सी पर गिर गया। वो साफ़ करने अंदर आई तो जैसे ही साफ़ करके मुड़ी तो वकील साहब ने उसका रास्ता रोका। हमदान साहब के साथ फारिग हो जाओ तो एक काम करना, मेरे पास आ जाना, चंद रातों का बहुत दूंगा। उस शख्स की बात पर वो फक चेहरे से उसे देखती साइड से होकर गुजरने लगी तो उसका रास्ता रोकता हाथ थाम गया और मुतौहिश अंदाज में उसे देखने लगी। छोड़िए मुझे, वो तरफ कर बोली तो वो शख्स से दीवार से चिपका था उस पर झुका और उसे पूरी कुव्वत से पीछे हटाती वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर गई। वो 2 घंटों से वहीं पर बैठी सिसक रही थी
फिर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया तो अपनी हिचकियाँ दबाने लगी। अबिया तुम अंदर हो? हमदान की आवाज़ सुनाई दी तो जल्दी से दरवाज़ा खोलती बाहर निकलकर उसके गले लग गई। वो साकी तो जामिद खड़े का खड़ा रह गया। फिर वो आहिस्ता से पीछे हुई और निगाहें चुरा गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ देर के बाद वो बोला तो सरसबाब में हिला गई। फिर वो बाकी का वक्त वही सहमी बैठी रही और एक साइड पर बैठी उठी ही नहीं थी। हमदान ने बहाना किया था कि वो ठीक नहीं, तो सब बार बार आकर उसका हाल पूछ रहे थे। वो घर पहुंची तो अंदर दाखिल होते हुए बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से इसे लेकर कमरे में आ गया। बीजान भी हाँफती कांपती ऊपर आई थी। हर मेरी बच्ची को नज़र लगी, जा फिरोज़ा जाकर सदका बेच मेरी बच्ची का। बीजान उसका माथा चूमते हुए बोली तो उनकी मोहब्बतों पर तरफ उठी थी। वो पूरी रात रोती सिसकती रही और हमदान बार बार उससे हालचाल पूछ रहा था। सुबह हुई तो हमदान शादी के फंक्शन के मुतल्लिक किसी से फ़ोन पर लगा हुआ था। वो उंगलियां चिटखाती हुई पास आई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो बोला। क्या आपको गलत नहीं लग रहा जो हो रहा है? वो लब कुचलती हुई बोली। क्या मतलब? वो हैरानी से बोला। ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बीजान को पता चला तो कितना दुख होगा उन्हें। वो लब कुचलते हुए बोली। तुम्हें मेरी बीजान की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा इन्हें। तुम्हें पैसों से मतलब है ना, तो अपना वही मतलब रखो, इतना स्ट्रेस मत लो। तुम जैसी लड़कियाँ तो कुछ भी कर जाए। किस तरह की तरबियत हुई है तुम्हारी मुझे अच्छे से पता है, और ख़ानदान की कदर तुम क्या समझ सकती हो? वो रूखे अंदाज में बोला तो उसके आंसू ठटर गए। मैं गलत हूँ, चले ठीक है, क्योंकि मेरी तो तरबियत करने वाली माँ बाप ही नहीं थे, मगर आप तो आला ख़ानदान के पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप में और मुझ में फ़र्क होना चाहिए, मगर नहीं है। अगर मैं पैसों की खातिर आपसे रिश्ता वाबस्ता किए हुआ हूँ और इसीलिए मुझे ख़ानदान की इज्जत मान का मालूम नहीं, मगर आप खुद भी ऐसे ही हैं। आपको भी कौन सा कदर है? मैं तो हूँ ही गंदी, मगर आप तो अच्छे हैं ना। जाइए, जाकर बताइए कि मैंने आपने मुझसे शादी क्यों की। सच बता सकते हैं आप? वो बोलती चली गई। आज वो अंदर तक हिल चुकी थी, क्योंकि आज वो बहुत गैर महफूज खुद को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था गोया पूरी दुनिया के मर्द उसके जिस्म को नोचना चाहते हों। हाउ डेयर यू! आइंदा से ऐसी बात की ना तो जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से गरायत वो अपना हाथ छुड़ाते हुए वॉशरूम की जानी पड़ गई। वो सर झटक कर बाहर निकल गया। अगले 2 दिन पुरसुकून गुजर चुके थे। आज मायूं की रस्म थी। सब दुल्हन येलो कलर्स की शरारों में मुलव्वस थी, मगर हैवी गोटी के दुपट्टे सबके ही मुख्तलिफ थे। आज तनवीर भी फैमिली समेत आया था, क्योंकि बीजा ने बुलाया था, और सब लोग इस महल को देखकर मुंह में उंगलियां दबा गए थे। वो एक साइड पर खड़ी गुमसुम सी बैठी थी कि तनवीर उसके पास आया। ओ मेरी मक्खन मलाई, तू बड़ी हॉट चीज़ लग रही है। वो इसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला तो ज़रा फासले पर खड़े हमदान ने ज़ोर से मुट्ठियाँ भींच ली। वो तेज़ी से पास आया। यहाँ इस वक्त मेरी फैमिली मौजूद है और तुम्हें मेरी बीवी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं आएगी और मुझसे 100 तरह के सवाल करेंगे, इसलिए मशवरा है कि अपने जज्बात को कंट्रोल करो। वो पास आकर सर्द लहजे में बोला, फिर उसका हाथ थामे स्टेज की जाने पड़ गया। वहाँ पर उसका बेहतरीन फ़ोटो शूट हुआ। अपने चेहरे पर स्माइल रखो वरना पैसा कट जाएगा। वो मुस्कुराते उसके कान के करीब बोला, मगर उसके लहजे में तंज की आमेज़िश थी। फिर वो दोनों एक हैप्पी कपल बनकर अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे। गुड गर्ल, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी भी है कि तुम बात को जल्द समझ आती हो। फिर फंक्शन ख़त्म होते ही बीजान ने तनवीर की पूरी फैमिली को वहीं रोक लिया ताकि वो उनके साथ चाय पिएं। क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? पहले ही मैंने इन्हें शादी पर बुलाया और अब ये सब। वो जला उठा था। पुत्र, लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं, और फिर जैसे भी हैं लोग उसके अपने ही हैं, और सबसे बढ़कर वो लड़का उसका कज़न है। मेरे ख्याल में उसका बहुत अच्छे से साथ रहना है। अभी यह पुत्र ने बताया था कि वो उसका बहुत ख्याल रखता है, और देखो ना, उसने उस घर में भी उसे पहुंचाया। मैंने सोचा चलो उसके सगे बहन भाई तो है नहीं, वही उसका भाई बनकर उसकी रुस्ती कर देगा। बीजान की बात पर उसने सोफे पर बिहा का साथ बैठे तनवीर को देखा। अरे ये मेरी मक्खन मलाई, मुझे अपना घर तो दिखाना, तनवीर ने कहा तो इसके तर्ज मुखातिब पर रखी जैसे उसकी तन गई। फिर वो बीजान के कहने पर से घर दिखाने चली गई, मगर उसके अंदर जैसे कुछ सुलग रहा था। कुछ देर के बाद वो अंदर वापस आ गए और वो खोजती निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। फिर वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गया और अरमान की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। सबके जाने के बाद वो सब अरमान के कमरे में मौजूद मूवी देखने बैठ गए और उमैरा उठकर अबिया को बुलाने चली गई। क्या बात है अरमान भाई, क्या सोच रहे हैं आप?
ज़ुहैब ने पूछा। तुम लोग कुछ नोट कर रहे हो? वो तनवीर भाभी का कज़न जो है वो कुछ ज़्यादा भाभी के करीब हो रहा था। बार बार उनका हाथ पकड़ा और ऊपर से बार बार बोले जा रहा था मेरी मक्खन मलाई। और मैंने नोट किया कि भाभी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बहुत घबराई हुई सी लग रही थी, जैसे बहुत अनकंफर्टेबल हो। अरमान ने कहा, ओ हेलो, कभी तुमने मुझे इतने गौर से देखा है? और गैर लड़कियों को इतने गौर से देखते हो? किंजा ने कहा तो सटपटा गई। अरे मैं तो तुम्हें रोज़ देखता हूँ ना, तुम जानती हो ना मुझे पुलिस वाले बनने का कितना शौक था, लेकिन बिग बी ने मुझे बनने ही नहीं दिया। मगर मेरे अंदर का जसूस ख़त्म नहीं हुआ। तुम लोगों ने शायद नोट नहीं किया, मगर मैंने नोट किया कि भैया बहुत ज़्यादा मुस्तरब थे और ये उस वक़्त का मजाक का वक्त नहीं था, और मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला तो बाकी सब भी सोच में डूब गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरमान भाई, जो भी है हम लोग आपस में कज़न हैं, हमारा आपस में इतना प्यार है, लेकिन हम इस तरह किसी कज़न का हाथ थामने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा आयशा का हाथ सुहेद भाई पकड़ें, और ना ही अरमान भाई बर्दाश्त कर पाएंगे कि मैं किंजा भाभी का हाथ पकड़ूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो जो कुछ अरमान भाई को और हमें दिखा वो बिग बी को क्यों नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने दूसरी बात नोट नहीं की, मैंने बिग बी को भी देखा। वो ना सिर्फ मुस्तरब थे बल्कि उनके चेहरे का रंग बार बार मुतग़य्यर भी हो रहा था, जैसे कि वो खुद के साथ जब्त कर रहे हों। अरमान ने कहा, ओह हमने वाकई ये नोट नहीं किया, क्योंकि हम में से तो किसी ने हिम्मत ही नहीं थी कि उनके चेहरे को देखने की, हर वक्त तो गुस्से में रहते हैं। ज़ैद ने कहा, मुझे कुछ और भी फील हुआ, शायद वो भी तुम लोगों को फील नहीं हुआ होगा। ऐसा लगता है कि भाभी के दरमियान कुछ अनबन हुई है उन दोनों के। वो दोनों वैसे कपल नहीं है जिसे होना चाहिए। हालांकि भैया ने बोला था कि इनकी पसंद की शादी है, उन्हें पसंद आई, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनके अंदाज में किसी भी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और शादी के दिन कोई ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इन्होंने ना तो कोई शॉपिंग करवाने के लिए ले जाना ज़रूरी समझा, और ना ही वो कोई चीज़ में दिलचस्पी ले रहे, और ना ही मैंने उन्हें रोमांस करते हुए देखा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है जो वो छुपा रहे हैं। अरमान ने कहा तो बाहर खड़ा हमदान लब भींच कर रह गया। वो अरमान से मेहंदी के फंक्शन की थीम पूछने आया था, मगर बगैर पूछे ही वापस पलट गया। वो कमरे में आया तो अबिया फ़ोन पर ही लगी थी। उसे देखते ही उसने फ़ोन रख दिया। कौन था? उसने खुशक लहजे में बोला। तनवीर थे। वो आहिस्ता से बोली, वॉशरूम की जाने पड़ गई कि जब भी वो उसे बाजू से जकड़ कर दीवार से लगा गया। जब तक तुम मेरे निकाह में हो तुम मेरे अलावा किसी मर्द को देख भी नहीं सकती हो, और ना इससे बात कर सकती हो। मैं मानता हूँ तुम्हें तनवीर के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन फ़िलहाल तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। वो इसके जबड़े दबोच कर घर आया तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी, तो उसकी गिरफ्त जबड़े पर नरम पड़ गई। वो आहिस्ता से इसे छोड़ता हुआ पीछे और अटक गहरे गहरे सांस पड़ने लगा। अगले दिन वो लॉन में रात के फंक्शन की तैयारी करवा रहा था, और फिर वो स्विमिंग पूल एरिया की तरफ का हिस्सा देखने के लिए वहाँ गया तो वहाँ खड़ी बिया को देखकर ठटक गया। उसे देखते अंदर की जानिब बढ़ने लगी थी कि एकदम से उसका पाँव फिसला और उसने खुद को बचाने के लिए उसका गिरेबान पकड़ा, मगर वो इसे लेते हुए स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। उसकी कमर में हाथ डाले उसके चेहरे को देखने लगा जो कि भीगा हुआ था। वो बेखुद सा होकर उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे के हर नक्श पर अपने लब रखता चला गया। वो साकित और जामिद उसके हिसार में कैद आंखें नीचे कड़ी थी। हमदान की निगाहें उसके कपकपाते होंठों पर ठहर गई। वो बेख्तियार उस पर झुकता उन्हें नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया। वो अब की बार तरप कर उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसकी कमर के गिर्द मजबूती से जकड़े उसे मजीद खुद के करीब कर गया। दोनों के दरमियान 1 इंच का भी फासला नहीं रहा था। कुछ देर के बाद वो अपनी मज़ाहमत छोड़कर उसकी कुर्बत में मदहोश हो गई थी। एक साथ यंग पार्टी ने आकर खनखारा तो हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हुए। ओह गॉड यार, बहुत ही क्यूट लग रहे थे आप दोनों, ज़ुहैब ने तस्वीर खींचते हुए कहा। व्हाट द फच, क्या बेहूदगी है ये, वो गुस्से से बोला तो ज़ुहैब ने एक और तस्वीर बना ली। वो झंझलाकर अपना कोट उतारकर उसे पहना था। उसका हाथ थामे बाहर आया तो सभी उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। वो गुस्से से उसका हाथ थामे अंदर की जाने बढ़ गया। कमरे में आते उसने हाथ छोड़ते गुस्से से उसे सोफे से धकेला और उसके जबड़े भींच कर उसे देखने लगा। तुम मेरी इस जरा सी त्वचा पर ज़्यादा खुश मत होना, एक्स्ट्रा पे कर दूंगा जो तुम्हें छुआ, वो सर्द लहजे में बोला तो उसकी बात पर अबिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इंतहाई फजूल इंसान है आप समझते क्या हैं?
मैं कोई खिलौना हूँ? वो गुस्से से बोली। तुमने अपने आप को खुद ही खिलौना बनाया है, तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की। खबरदार जो आपने मुझे गोल्ड डिगर बोला तो। वो इस बात काटते हुए चीखी तो वो आंखें सुकेर कर उसे देखने लगा। तो और क्या हो तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियां तो पता नहीं पैसे के लिए कितने मर्दों के साथ वक्त गुजारती हो। तो ये लफ्ज़ बुरा क्यों लग रहा है? वो सर्द लहजे में बोला। बस बहुत हो गया, आप मुझे मज़ीद कुछ नहीं बोल सकते, वरना वरना क्या करोगी? वो उसकी तरफ जा रहा अंदाज में बढ़ते हुए बोला। तो सहम कर पीछे हो गई। बोलो ना, वरना क्या करोगी? उसके जब जबड़े दबोच कर बोला तो तकलीफ के एहसास से उसकी आंखें झलक गई। उसे पीछे धकेलता वॉशरूम की जाने बढ़ गया। शॉवर के नीचे खड़े होते वो सामने दीवार पर बाजू टुकाए आंखें मूंद गया, मगर भीगी निगाहें सामने आई तो हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। क्यों क्यों दर्द होता है मुझे उसके आंसू से? क्यों उसे दर्द देता हूँ तो मेरे अंदर दर्द उठता है? वो खुद से उलझता जा रहा था। फिर वो नहा कर बाहर निकला तो कमरे में वो मौजूद ही नहीं थी। उसे ढूंढता हुआ कमरे से बाहर निकला तो लाउंज पे बैठी किरण को देखकर ठटक गया। और कब कर रहे हो तुम शादी? मुझे तो वैसे पता लगा था कि जब तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक किसी और की शादी नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया? किरण उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगी तो बीजान की तरफ देखने लगा। आपने बिल्कुल सच सुना है, और हमारे बिग बी की शादी हो चुकी है। आपने मेरी भाभी से बहुत खूबसूरत हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं दोनों एक दूसरे से। ये देखिए तस्वीर, ज़ुहैब ने अपना मोबाइल आगे करते हुए कहा, जहाँ स्विमिंग पूल एरिया में वो इसके लबों पर झुका हुआ था। ज़ुहैब ने तस्वीर उसे इस वक्त ली थी जब वो उसमें पूरी तरह खोया था, तो तस्वीर से रोमांस झलक रहा था। किरण गुमसुम सी तस्वीर को देखने लगी। यकीनन उसे अच्छा नहीं लगा था कि वो शख्स मूव ऑन कर चुका था, क्योंकि दिल ही दिल में वो आज भी खुश होती थी कि वो इसे चाहता है। हम में से किसी ने नहीं तुम्हें देखा, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम्हें ये सरप्राइज़ यहाँ कर मिले, बीजान ने कहा और फिर अबिया को आवाज़ दी, जो कि सबके साथ पार्लर तैयार होने के लिए जा रही थी। उसके गीले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो खुद को मबूत सा उसे देखता रह गया, क्योंकि पहली बार वो उसे यूं खुले बालों में देख रहा था, वरना उसके बाल इतने लंबे हो सकते थे तो ये तो तसव्वुर भी नहीं किया था। इनसे मिले, यह है किरण बाजी, आपको बताया था मैंने। और किरण बाजी ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी भाभी जान, जो कि सच में बहुत बिल्कुल भैया के लिए ही बनाई गई थी। अमेरा ने तंज़ीह अंदाज में कहा तो बेचैन से होता नजरें फिर गया। चले भाभी, हम लोगों को देर हो रही है, उमेरा ने कहा, फिर उसका हाथ थामे वहाँ से निकलती चली गई। शाम को वो तैयार होकर लॉन में खड़ा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था कि 5 दूल्हें तैयार होकर वो पहुँच चुकी थी। सबकी ड्रेसेस आज सेम थे। ग्रीन कलर की हैवी मैक्सी में सबसे प्यारी वही लग रही थी। तनवीर तेज़ी से पास आया और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा तो उसने अंदर से जैसे आग लग गई। तनवीर अपनी बहन से मिलने के लिए आया है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अताले हो रहे हो, मगर अभी फ़िलहाल मुझे अपनी बीवी से तो मिलने दीजिए, क्योंकि सबसे पहला हक तो शौहर का ही होता है। और तनवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए सर्द लहजे में बोला। तो तनवीर चुपचाप पीछे हट गया। अपने बाल क्यों खुले छोड़े तुमने? वो उसकी सिल्की बालों को हाथ से फिरते उसकी खुशबू सांसों में उतारते हुए बोला। तो खिसक कर उससे दूर जाने लगी तो इसकी कमर पे सख्ती से हाथ डाले अपने करीब कर गया। यहाँ पर किसी को भी हमारे रिश्ते की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, ये मैं तुम्हें बहुत पहले भी कह चुका हूँ। तो इसलिए जिस सिचुएशन में खड़ी हो ना, वैसे ही खड़ी रहो। अब की बार अपने होंठ उसके रुखसार पर रखते हुए बोला। तो पूरी जान से लड़स गई। तनवीर एक साइड पर खड़ा अजीब सी निगाहों से उन्हें देख रहा था। कुछ देर के बाद उस पर आस पास आकर खड़ा हो गया। वैसे हमारे दरमियान जो डील हुई थी उसमें ये सब तो शामिल नहीं था। तनवीर ने पास आकर कहा तो एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। कहना क्या चाहते हो? उस सर्द लहजे में बोला। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसने सिर्फ आपको बीवी होने का टोंग करना था, मगर आप उसे छू रहे हैं तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तनवीर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद करते हो, तो इसीलिए तुम ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन बीवी का टांग ज़ाहिरी बात है वो कर रही तो हमें मियाँ बीवी का रोल प्ले करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ मियाँ बीवी इसी तरह रहते हैं। उस पार्ट लजे में बोला। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कीमत थोड़ी कम है सर जी। तनवीर की बात पर वो बेयकीनी से देखने लगा। ओह, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर को गोल्ड डिगर समझ रहा था, मगर यहाँ तो तुम भी वैसे ही निकले। अपने लालच के लिए तुम अपनी मंगेतर को इस्तेमाल कर रहे हो। सही जोड़ी बनेगी तुम दोनों की।
वो तलक मुस्कुराहट से मुस्कुराया। सर जी, ये 1 करोड़ रुपए मैंने सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से शौहर बनने के लिए कहा है, लेकिन ये रोमांस वाला, ये छूने वाला, इसके एक्स्ट्रा पैसे ही लगेंगे। वो बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बीवी से पहले ही कह चुका हूँ कि उसके अलावा जो भी जायद छोड़ूंगा उसके पैसे दूंगा। और हाँ, बीवी होने के टांग में उसे छूना भी शामिल ही था, मगर उससे ज़्यादा मैं करूँगा, क्योंकि वैसे तो दे रहा हूँ। 2 करोड़ रुपए दूंगा और इसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। उस पैट लहजे में बोला तो तनवीर हंस पड़ा। पता था मुझे ये सब होगा, क्योंकि वो हसीन ही इतनी है कि उसे देखकर दिल बेईमान हो जाता है। उसे बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला तो मुट्ठियाँ बींच कर रह गया। फिर वो स्टेज की जानिब बढ़ा, जहाँ पर सब लोग अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे और बैकग्राउंड पर मेहंदी के गीत चल रहे थे। कुछ देर के बाद ढोलक वाले आए और सब ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालना शुरू कर दिए। जुहेब और उमेरा उन्हें भी खींचकर स्टेज पर ले आए। वो उसे अपनी बाहों में बड़े डांस करने लगा। उसे छू रहा था, किस कर रहा था, और वो उसकी बाहों में बेजान हो रही थी। उसका लम्स उसके जज्बात को बदल रहा था। उसे उसकी कुर्बत बदहोश कर रही थी, उसके जज्बात से आ रही थी। मगर उस शख्स ने पहली बार उसके लबों को छुआ, तब से उसे मालूम था कि वो अपने अंदर दिल रखती है। तनवीर के लिए सिर्फ इतनी सी अहमियत रखता था कि उसे सबसे बचाता था। वो इसी नाते से पसंद करती थी। मगर मोहब्बत क्या होती है, ये अब वो जान पाई थी। उसका दिल जैसे पसलियों में धड़क रहा था। फिर फंक्शन ख़त्म होते ही सब दुल्हनें लिविंग रूम में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वो भी एक साइड पर बैठी थी और बहुत थक चुकी थी, मगर इसे बहुत भूख भी लगी थी। बाकी सबको उनके मंगेतरों ने खाना खिला दिया था और बीजा ने किरण से कहा था कि इसे खाना खिला दो, मगर उसने खुद से खाने से इनकार कर दिया था। भूख से उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था और सुबह से वो किचन में लगी थी। हालांकि बीजान ने मना भी किया था कि किचन में गुल लगी हुई है, लेकिन बीजान को उसने मना कर दिया और घर वालों के लिए खाना खुद बनाया। और थकन और भूख से इसकी बस हो चुकी थी। भाभी, आप कमरे में जाकर आराम करें, पलवाशा ने कहा तो उठकर अपनी मैक्सी संभालती ऊपर आई तो वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर लगा हुआ था। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें बता दिया होगा कि उसकी मेरे दरमियान अब 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ की डील हुई है। यानी कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता थोड़ा सा मजीद गहरा होने लगा है, चंद माह के लिए, मगर हम मुकम्मल मियाँ बीवी जैसे ही रहेंगे। कल से मेरा और तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक़ भी होगा, तो उसके लिए तुम मुझे ख्याल में ज़हनी तौर पर तैयारी होगी। वैसे तुम्हारा मंगेतर गोल्ड डिगर निकला, शेमलेस कपल बनोगे। बाकी फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतने पैसे दे ही रहा हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो मैं अपने जज्बात को ठंडा कर ही लेता हूँ। वो अपने मखसूस काटदार लहजे में बोला और उसके अंदर जहर उतार रहा था। उसकी भूख प्यास उसकी बातों से ही मिट जाती थी, मगर आज उसे लगा था कि अब तक उसका सबसे ज़ोरदार तमाचा ये है जो उसके मुंह पर पड़ा था। तनवीर भी उसे इस्तेमाल कर रहा था। ये बात अब वो समझ चुकी थी। वो शख्स जो उसका हमदर्द बना फिरता था, पैसे की खातिर इस हद तक जा सकता था, उसने कभी नहीं सोचा था। वो पूरी रात सोफे पर लेटी बेआवाज़ आंसू से रोती रही। फिर सुबह बुखार में वो तप रही थी। वो बीजान के बुलावे पर बमुश्किल उठकर वैसे ही नीचे आई तो उसका पाँव बहका और वो सीढ़ियों से गिरती चलेगी। उसकी दिल खराश चीखों से पूरा पाशा हाउस गूंज उठा। सब भागते हुए डाइनिंग हॉल से बाहर आए तो वो फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी और इर्द गिर्द खून ही खून था। हमदान की तो जैसे जान लबों पर आ गई। वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में पकड़कर बाहर की जाने भागा। उसके सर पर बहुत बुरी चोट आई थी। वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर के साथ वो भी ऑपरेशन थिएटर में आया और डॉक्टर मारिया ने ट्रीटमेंट शुरू किया। बुखार बहुत तेज़ है डॉक्टर मारिया ने कहा तो वो लब्बी खींचते हुए उसे देखने लगा। फिर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर मारिया ने उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को भी देखा तो एकदम चीख उठी, व्हाट हैपेंड? ये सब क्या है डॉक्टर हमदान? क्या हुआ डॉक्टर मारिया? वो जल्दी से पास आकर बोला तो डॉक्टर मारिया ने लाइट्स तेज़ की तो देखकर साकित रह गया। उसके जिस्म पर जगह जगह निशान थे जैसे उसे मारा पीटा गया हो। ये सब क्या है? क्या आपकी वाइफ पर कोई टॉर्चर करता रहा है? वो बोला, मुझे नहीं मालूम। वो निगाहें चुराते हुए बोला, क्या आप क्या कह रहे हैं? वो आपकी बीवी है तो आपको नहीं पता इस बारे में? डॉक्टर मारिया ने पूछा, क्योंकि अभी तक मैंने अपने रिश्ते को इस हद तक नहीं ले जाना मुनासिब समझा। वो बहुत छोटी है, अगले महीने वो 18 साल की होने वाली है, तो इसीलिए। वो निगाहें चुराते हुए बोला, वो अच्छी बात है क्या आपने सोचा, लेकिन कम अज़ कम उसकी दिल की बात सुन लेते।
نہ जाने उसके दिल में कितने तूफान हो। क्या इसने आपको बताया भी नहीं, या फिर अभी तक आपकी ज़हनी मांगी नहीं हुई? डॉक्टर मारिया खोजते लहजे में बोली। आप अपने काम से काम रखें, उस पार्ट लहजे में बोला। ये ले लॉकेट, इसका गले से उतारा था। वो बोली तो वो एकदम से चौंक गया। इसे वो लॉकेट जाना पहचाना, मगर कहाँ देखा ये भूल गया था। फिर वो अपने ऑफिस आकर उस हार्ट शेप लॉकेट को खोलने लगा और टक की आवाज़ से खुल गया। उसमें लगी तस्वीर देखकर वो साकित रह गया। वो तस्वीर वो बहुत अच्छे से जानता था। उस तस्वीर में मौजूद शख्स के आखिरी अल्फाज अच्छे से याद थे, मगर वो महज तब 15 साल का था। मगर वो अहद पूरा न कर सका। तो अगर कुछ देर के बाद उसे होश आया तो वो कमरे में आया तो सब उसे घेरे हुए थे। अब सब लोग घर जाइए, आपकी शादियाँ हैं। वो धीमे से लहजे में बोली। हरगिज़ नहीं भाभी, जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक कोई शादी नहीं होगी। जैद ने कहा कि सबसे ज़्यादा शादी के लिए वही एक्साइटेड था। बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जैद भाई, आपने शादी के दिन का बहुत इंतज़ार किया है, प्लीज़ इस तरह मत छोड़िए। मेरी वजह से मेरा होना ज़रूरी है। वहाँ आप लोग शादी कीजिए और मैं यहाँ ठीक हूँ। वो जल्दी से बोली। आपसे किसने कहा कि आपका होना हमारे लिए ज़रूरी है? आप हमारी फैमिली मेम्बर हैं। आपका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बगैर ये शादी नहीं हो सकती। हमारी फैमिली का एक मेंबर भी कम हो तो हम खुशी कैसे बना सकते हैं? आप जब तक हॉस्पिटल से ठीक होकर घर नहीं पहुंच जाती, हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैद ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा जैद ने। और बिग बी और आपके बगैर हम लोग ये शादी कैसे कर सकते हैं? अरमान ने कहा। हाँ तो ठीक है ना, हमारा होना ज़रूरी है तो मैं चलूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। चले, हम अभी घर चलते हैं। वो बोली तो हमदान संजीदगी से उसे देखने लगा। माई डॉल प्रिंसेस, ये मुमकिन नहीं। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फंक्शन 2-4 दिन ठहर कर लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। उसके रुखसार को हल्के से छूते हुए उस पर झुकते हुए बोला। तो वह हैरानगी से उसे देखने लगी। मैंने बोला है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ चलिए ना, मुझे ये फिर कल गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से आप लोगों ने अपनी खुशियों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। वो बोली तो सब एक दूसरे को देखने लगे। ओके फाइन, लेकिन आप फंक्शन की वजह से अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगी। अगर आपकी तबीयत ज़रा से भी ख़राब हुई तो आप फ़ौरन बताएंगी। अरमान ने कहा तो हमदान को देखने लगी, जिसकी आंखों में नरमी थी। फिर वो 1 घंटे में उसे लेकर घर पहुँचे। उसने लहंगे की बजाय सिंपल गाउन सूट पहनने के लिए निकलवा लिया। पॉलर वाली से तैयार करके जा चुकी थी और नीचे वाला कमीज़ पहन चुकी थी और गाउन पहनना बाकी था। जब भी हमदान अंदर दाखिल हुआ तो वह हड़बड़ा सी गई। उसकी बैग काफ़ी गहरी थी। हमदान ने उसके गाउन पहनते ही उसके निशान को देखा तो जैसे आंखों में लहू उतर गया। ये तुम्हारे जिस्म पर निशान कैसे हैं? वो बोला तो उसने कहा, आपको बिल्कुल भी हक नहीं कि आप मुझसे इस तरह के सवाल करें। मैं एक लड़की हूँ, लालची और दौलत की हवस में आपके पास आई हूँ, तो आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दें। उस पार तहजीम बोली तो वो लब पींच कर रह गया। फिर वो शादी के फंक्शन में एक साइड पर बैठी रही और तनवीर उसके पास आकर बैठा। कोई बात कर रहा था मगर वो स्पार्ट लहजे से सामने ही देख रही थी। फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में आई तो तनवीर उसके पीछे ही चला आया। मेरी मक्खन मनाई नाराज़ है मुझसे? उसकी थोड़ी सी थामते हुए बोला तो पीछे को हो गई। आपको क्या लगता है जो कुछ आपने कल किया उसके बाद मुझे आपसे बात करनी चाहिए? आपने मुझे बेच डाला। क्या समझ रखा है आपने मुझे? कोई जिस्म फरोश हूँ मैं? मेरे शौहर से डील कर रहे थे? छी, प्यार का दावा था ना वो। कल मैं समझ में नहीं पा रही थी उसके पीछे आपका मकसद क्या है। आपने तो सिर्फ मुझे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। मुझसे आपने ये कहा कि आप मेरी खातिर ये सब करना चाहते हैं ताकि मुझे अपना घर दे सके, मगर मुझे छोटे से घर में आपका साथ कबूल था क्योंकि मैं समझती थी कि आप मेरी हिफाजत करते हैं दूसरों से। लेकिन मैं गलत थी। मुझे मेरे ही शौहर के सामने जलील कर दिया आपने। क्या आप अपनी दोनों बहनों में से किसी एक को इस काम के लिए चुन सकते थे? वो तलक मैं लहजे में बोली तो तनवीर इसे गुस्से से देखने लगा। ए मक्खन मलाई, मैं इस पैसे की खातिर अपनी बहन तो क्या अपनी माँ को भी बेच डालूं? तुम चुपचाप उस शख्स के साथ ये वक्त गुजारो और इससे पैसे लेकर घर आ जाना और उसके बाद तुम्हें बहुत सारे मर्दों के पास जाना है। उसके चबड़े को दबोच कर बोला तो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। उसकी ज़ुबान जैसे उसका ये रूप देखकर गंग रह गई थी और पीछे से इसने किसी ने खींचा। वो अरमान था
جو کہ واش روم کے لیے آیا تھا، مگر اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتا وہ سب سن چکا تھا۔ ارمان اسے بے دردی سے پیٹنے لگا۔ یہ میری بہن ہے اور ایک بھائی کے ہوتے اس کی بہن پر جو ایسے بات کرے گا میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ ارمان اس کے جبڑے بھینچ کر بولا، اور اسی وقت ہمدان اندر داخل ہوا جو کہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہمدان نے پوچھا۔ نکل یہاں سے، ارمان چیخا تو وہ بکتا جگتا نکل گیا۔ کیا یہ سب؟ وہ حیرانی سے بولا۔ آپ اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، چھی۔ ارمان غصے سے بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ناگواری سے بولا، اچھا یہ بدتمیزی ہے، مگر آپ نے جو کیا وہ کیا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، پھر اس نے تنویر کے ارادے بتائے تو ساکت رہ گیا۔ یہ بکواس ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہمدان مٹھیاں بھینچ کر بولتا باہر جانے لگا۔ پلیز یہ دیکھیں، ہاتھ جڑے میرا تماشا مت بنائے ورنہ بی جان شرم سے مر جائیں گی، ارمان نے کہا اور پھر غصے سے باہر نکل گیا۔ وہ روتی ہوئی ابیہا کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا، مگر وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر رخ پھیر گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں رخصتی ہوئی اور وہ گھر پہنچتے کے ساتھ ہی تنویر وہاں کر ہنگامہ کرنے لگا۔ چل میرے ساتھ، تنویر نے ابیہا کا ہاتھ پکڑ کہا تو ہمدان نے اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو ورنہ پولیس بلوا کر اریسٹ کرواؤں گا، وہ غصے سے بولا۔ ہماری بچی ہے، ہمارے ساتھ ہی جائے گی، تنویر کی ماں بولی۔ یہ بچی جواد پاشا کی ہے، یعنی پاشا خاندان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی، یعنی ہمارا اپنا خون، وہ سرد لہجے میں بولا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اب تم لوگ یہاں سے نکلو گے یا پولیس کو بلواؤں؟ وہ بولا تو سب کھسکنے میں ہی انہوں نے عافیت جانی۔ بی جان تو اسے اپنے سینے سے لگائے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ، اب میرا بچہ جو چاہے گا وہی ہوگا، تمہیں اگر ہمدان کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رہنا تو کوئی پرابلم نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بی جان، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے ہماری بہن، اور ہماری بہن کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو یہ بھائی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، صہیب نے کہا، اور پھر باری باری سب اس کا اپنا پن دکھا رہے تھے اور بیگی آنکھوں سے وہ ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ غصے سے بولی تو ہمدان نے آنکھیں سکیر کر دیکھا۔ فکر مت کرو، مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانا آتا ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ اتنے رشتے نبھا رہے ہیں نا، میری ایک گرج سے دبک کر اپنے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ میری نرمی کو کچھ ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو سب سٹ پٹا کے رہ گئے۔ اس کی بی جان زندہ ہے، اور خبردار میری بیٹی کے ساتھ سختی سے بات کی، وہ گرج کر بولی، پھر سے لے کر کمرے میں چلے گی۔ اگلے 3-4 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی بی جان کے کمرے سے اوپر اس کے ساتھ جو کمرہ تھا اس میں شفٹ ہو چکی تھی، اور اس کے آتے ہی وہ کمرے میں جا کر بند ہو جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں محض جنجلا کر رہ جاتا۔ آج سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے کہ جب ہی وہ اندر داخل ہوئے تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اطمینان سے چلتا ہوا اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، مگر وہ اس سے دیکھ کے اٹھ کر جانے لگی، مگر اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے برابر بٹھا گیا۔ سب اتنے خوش ہیں، سب کا پلان کیوں خراب کر رہی ہو؟ مجھ سے الرجی ہے تو ٹھیک ہے، میری خاطر نہیں تو ان کی خاطر بیٹھ جاؤ، جو تمہاری خاطر ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ بولا تو ابیہا چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پھر مووی شروع ہوئی تو وہ ہارر تھی، وہ ڈر کے اس کے بازو کو دبوچ کے بیٹھ گئی، اور جب کوئی خوفناک منظر آتا تو مزید قریب ہو جاتی، اور ایک سین میں چیخ مارتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مووی ختم ہوتے ہی لائٹ آن ہوئی تو وہ اپنی آکورڈ سچویشن پر شرمندہ ہوتی پیچھے ہو گئی۔ پھر ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے، مگر وہ وہیں بیٹھی تھی کیونکہ ہمدان اس کا ہاتھ زور سے جگڑے ہوئے تھا۔ مجھے سونا ہے، وہ من منا کر بولی۔ تو چلو کمرے میں چلتے ہیں، وہ وہاں جا کر میری باہوں میں سو جانا، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ وہ کیا ہے نا، تم نے خوفناک مووی دیکھی ہے، اور اگر رات کو تمہارے پاس ایسی بوتنی آ گئی تو پھر کیا کرو گی اکیلے؟ اس لیے آفر کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ بولا، آپ سے تو کم ہی خطرناک جن ہوگا، مجھے اس کے ساتھ رہنا منظور ہے مگر آپ کے ساتھ نہیں، وہ غصے سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے چلے گئی۔ وہ لب پینچ کر کمرے میں آ گیا۔ ابیہا اسے سنا کر اپنے کمرے میں آ تو گئی تھی، مگر جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر جب اس کا خوف زیادہ ہوا تو وہ اٹھ کر بے اختیار ہمدان کے روم کی طرف آئی تو منہ دوسری طرف کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، تو چپکے سے آ کر اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی کہ ہمدان مڑتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر اپنے سینے سے بھینچ گیا۔
تم تو کہہ رہی تھی مجھ سے کم خطرناک جن ہوگا، تو وہ اپنے جن کے پاس آ کر کرنے کیا آئی ہو؟ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ تو اس کے مزید قریب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو ایک دم سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے رونے پر گھبراہٹ آ گیا۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ وہ مسلسل سے روتے دیکھ جھنجھلا کر بولا۔ وہ آپ مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں نا تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ہمدان کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ میری جان کے ٹوٹے، میں ایسے ہی پیار سے بات کروں گا تو کہ تم بات پہ بات رہو گی کیا؟ اس کی تھوڑی سی تھامے وہ بولا۔ میں آپ سے ناراض تھی مگر آپ نے مجھے منانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور آپ مجھ پر پیار جتا رہے ہیں، بہت برے ہیں آپ، آئی ہیٹ یو۔ اس کی سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھے کہنے سے کمرے میں چھپ جاتی ہو تو میں کیا مناتا؟ میں کوئی سپر مین تو ہوں نہیں، چپ کے پائپ سے چڑھ کر اوپر تمہارے کمرے میں آ جاتا۔ میرے دل پر کیا بیتی تم جانتی ہو؟ ایک ایک پل میرا گزارنا مشکل تھا۔ تم تو ایسا فیصلہ کر لیا جیسے بیجن کے پاس ہوئی، پھر علیحدہ کمرے میں۔ میرے تو جذباتوں کا خون ہو گیا نا۔ ویسے بھی میں روٹھوں تو بہت جلد منا لیتا ہوں، تم نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتے ہوئے بولا۔ اب آپ منائیں گے؟ بنا بھی تو نہیں مانوں گی نا میں ناراض ہی رہوں گی۔ وہ نروٹھے پن میں بولی۔ مطلب اپنے شوہر کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں کیوں ایسا چاہوں گی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ اگر محبت ٹوٹ جائے نا تو رب ٹوٹ جاتا ہے، اور رب ٹوٹ جائے نا تو بندہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے وقت سے پہلے روٹھوں کو منا لینا چاہیے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں معاف کر دوں گی آپ کو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ وہ اپنا ہاتھ اپنی رخسار کے نیچے رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ مجھے تب تک نہیں چھوؤں گے جب تک میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ نہ کر لوں۔ وہ بولی تو ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ بات کر رہی ہو یار؟ نہ کر، بچے کی جان لوگی کیا؟ وہ جلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو منظور نہیں تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ پتہ بھی ہے مجھے کتنا شوق تھا انگریزی بولنے کا، جیسے آپ بولتے ہیں پٹر پٹر، لیکن مجھے مامی نے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اور ویسے بھی آگے میرے بچے جب ہوں گے اسکول جائیں گے اور پیرنٹس میٹنگ میں ان پڑھ جاہل بیوی کو لے کر جائیں گے کیا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ جب چھوؤں گا نہیں تو بچے کیا ڈاؤن لوڈ ہوں گے؟ اور منہ بنا کر بولا تو اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کمرے سے الگ نہیں جاؤ گی، اور ہاں کس وغیرہ کرنے دو گی نا؟ وہ بولا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اس بات میں ہلا گئی، اور وہ اس کے چہرے پر جھکا اس کے ہر نقش کو چومتا چلا گیا۔ وہ شرمائی لجائی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، اسے باہوں میں بڑے آنکھیں موند کیا۔ وہ پاس تھی، یہی کافی تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید قریب آ ہی جائے گی، وہ جانتا تھا، مگر وہ اس پر زور زبردستی کر کے اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ روح اور دل سے شروع ہوتا ہے اور جسم تک پہنچتا ہے، اور یہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔